हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੀ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੱਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ Q is equal to CV, ਸੋ C is equal to Q upon V। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧੇ, ਚਾਰਜ ਵਧੇ ਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਚਾਰਜ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ Q ਤੇ V ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਓਹਮਸ ਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜਡ ਅਰਥ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ ਇਹਨੂੰ। बैटरी लगाई है, फुल चार्ज कर दिता। हुण इहने अपनी चार्जिंग तो उन्नी ही करनी है जिन्ना इहदी अपनी कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटर दा प्रिंसिपल है बोलदा कि व्हेन वी पुट a uncharged
अर्थ कंडक्टर का मतलब होता है सिंबल अर्थ का वा, अर्थ का मतलब है डायरेक्टली कंडक्ट विद अर्थ। देन potential of capacitance of the conductor can be raised up, considerably raised up, मतलब बहुत ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ पोलैरिटी करके पॉजिटिव चार्ज वाले पासे इधर ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ फेस ਤੇ, पॉजिटिव चार्ज ने दूसरी साइड ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ मतलब ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ पोटेंशियल ਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, V1 टोटल पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज दिया, पोटेंशियल किया, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो प्लस हो जाएगी और अगर नेगेटिव चार्ज दिया तो माइनस हो जाएगी, है ना। क्यों ना मैं इस तरह करा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ रिमूव कर दिया। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा तो फिर की रह जाएगा, कल्ला नेगेटिव चार्ज। मान लो साढ़े को बहुत सारे चार्ज है और उन्होंने रिस्पेक्टिव पोटेंशियल है V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन, जिहदे विच कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव ने और कुछ नेगेटिव। पर क्योंकि इस कंडक्टर ते इक्वल ते ऑपोजिट चार्ज ही आना, पॉजिटिव भी होएगी ते नेगेटिव भी होएगी, ऐसे पता ही है। हुण अगर मैं पॉजिटिव चार्ज नूं इत्थों किसी तरह रिमूव करवा दियां ते की होएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाली पोटेंशियल रह जाएगी और नेगेटिव चार्ज वाली पोटेंशियल दे नाल मतलब पोटेंशियल जिथे प्लस हो के ਵਧਣੀ ही, ठीक है, नेगेटिव नाल की हो जाना वो चीज घट जानी है क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ माइनस हो जानी है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर मैं ਇਹਨੂੰ करा दियां अर्थ, इस कंडक्टर ਨੂੰ जिस तरह ही मैं अर्थ करांगा, ਇਹ पॉजिटिव चार्ज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ अर्थ होने के उत्ते ट्रांसफर हो जाएगा और साडी जिहड़ी आ प्लेट है ओनली नेगेटिव चार्ज दी रह जाएगी। सो नेगेटिव चार्ज दी प्लेट करके पोटेंशियल जिहड़ी आ, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल घट जाएगी। सो यही तो सानू चाहिए जी, किसी चीज की कैपेसिटेंस बढ़ाने वास्ते अगर आप उसकी पोटेंशियल घटा देने हैं तो किदां घटा सकते हैं, सिंपल बाय ब्रिंगिंग अ अर्थ कंडक्टर नियर बाय द चार्ज कंडक्टर। तो फिर तुम देखोगे कि यदि पोटेंशियल जी कैपेसिटेंस है वो राइज अप कर जाएगी। यही यदि एक लाइन दी प्रिंसिपल तुहानू बुक विच दिता, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी हैव टू कंडक्टर, one is charge conductor, we have to charge it, the other is अनचार्ज कंडक्टर विच इज अर्थ। जदों तुसी अर्थ कंडक्टर नूं किसी चार्ज कंडक्टर दे नेड़े लैके आओगे तां साडे चार्ज कंडक्टर दी कैपेसिटेंस राइज अप करदी है। यह है कैपेसिटर दा फार्मूला, ठीक है। सो इस प्रकार दे नाल कैपेसिटेंस जिहड़ी आ वो वधाई जा सकदी है और ऐसी दा प्रिंसिपल। इत्थों शुरू करदे हां अज दा पहला टॉपिक। इत्थों अगे वो हैगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होप सो तुहानू यह चीज समझ आ गई होए, ठीक है। सो
इनू मैं रब करदा और शुरू करदा अज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दा डेरिवेशन कि उहदी कैपेसिटेंस किदां कड्ढी जा सकदी है। मैं एक बारी फिर तो दसदा कैपेसिटेंस की है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी और इलैक्ट्रिकल चार्ज। असल दे विच बहुत वड्डे लैवल दे उत्ते इलैक्ट्रिकल एनर्जी या इलैक्ट्रिकल चार्ज नू स्टोर करन दी क्षमता जिहड़ी है उन्नू ही आपां किसी कंडक्टर दी कैपेसिटेंस बोलदे हां। सही मायने दे विच अगर देखा जाए तो किसी भी कंडक्टर दे विच जदों उन्नू चार्ज किया जाता, एक कंडक्टर है लैट च मैं एक कंडक्टर बनाया, एक कैपेसिटर बना दिता, जदों उन्नू चार्ज किया जाता बाय मीनस ऑफ बैटरी ते वो की करदा वा बैटरी दी प्लेट्स दे विच ओपोजिट टर्मिनल दे उत्ते ओपोजिट चार्ज नू कंटीन्यूअसली स्टोर करी जांदा वा। कदों तक स्टोर किया जांदा, उदों तक स्टोर करदा वा जदों तक साडा जिहड़ा कैपेसिटर है ओनू जेड़ी बैटरी स्टोर करे करदी है, जो ओदी पोटेंशियल है वही पोटेंशियल जेड़ी है तुहाडे कैपेसिटर दी या कंडेंसर दी होना जाए। प्रैक्टिकली जे सच देखिए तो सच इहदे विच यह हैगा कि नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर दे उत्ते जीरो ही हुंदा। जेड़ी सच गल है नेट चार्ज जीरो हुंदा। बस की कीता हुंदा सैपरेशन दित्ती है और सैपरेशन देण दे नाल इहदे विच एक हिसाब दी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दा निर्माण हुंदा जो कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी तौर दे उत्ते स्टोर कीती जांदी है। सा फिर आप कह सकते हैं कि साडा कैपेसिटर जिहड़ा वा वो लार्ज अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता वा क्योंकि नेट चार्ज वैसे जीरो हुंदा। हाँ चार्ज की सैपरेशन कर दी तो इनू काउंट अलग करिए, पोस्ट नैगेटिव में काउंट अलग करिए, फिर असीं कह सकते हैं कि साडा जिहड़ा इलैक्ट्रिकल चार्ज है वो कुछ है अलग अलग। पर अगर नेट देखिए जिन्ना इत्ते पॉजिटिव चार्ज है ना उन्ना ही इत्ते आना एंड देन नेट चार्ज विल बी जीरो। ठीक है, सो गल आंदी है इत्थे तक समझ आ गया। यह थोड़ा एडिशनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। देखो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी पहला तुसी कंस्ट्रक्शन करोगे फिर इहदी डेरिवेशन आनी है। मान लो साडे को दो प्लेट्स ने, ठीक है, दोनों प्लेट पैरेलल है क्योंकि पैरेलल प्लेट कंपैसिटर दे विच दो प्लेट्स हुंदियां पैरेलल जिन्हां नूं आपां इनफाइनाइट डिस्टेंस दा बनने आ और दोनों प्लेट्स जिहड़ियां ने वो ओपोजिटली चार्ज हुंदियां ने। मान लो पहली प्लेट जिन्हों मैं एक नंबर दे दिना, लैट इनू मैं नंबर दे दिता दिस इज फर्स्ट वन, ओनू पॉजिटिव चार्ज दे नाल असी भरिया और इत्थे चार्ज भरन दी डेंसिटी जिहड़ी आ वो प्लस सिग्मा, ओदे बिल्कुल नेड़े ही डी डिस्टेंस ते पई, कितना डिस्टेंस डी डिस्टेंस ते पई, बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस होएगा। दूसरी प्लेट नू नेगेटिव चार्ज दे नाल माइनस क्यू चार्ज दिता गया। जे प्रैक्टिकली देखिए तो असल च चार्ज दिता नहीं गया हुंदा, फिर उस तरह ही है इनू चार्ज दिता गया एक प्लेट नू, जबकि दूसरी जिहड़ी प्लेट है वो अर्थ प्लेट है जिहदे करके इत्ते सिर्फ चार्ज जिहड़ा वा वो नेगेटिव है। एक गल होर मैं तुहानूं दसना चाहांगा, यह जिहड़ी प्लेट है इहदे सिर्फ क्योंकि यह इस तरह प्लेट्स ने, एक मिनट बेटा, मान लो इस तरह प्लेट्स ने, सिर्फ ये अंदर वाले सर्कल दे विच ही चार्ज आएगा क्योंकि चार्ज ने एक दूजे नू अट्रैक्ट कर लिया जिहदे नाल पॉजिटिव चार्ज इहदे इनर सर्कल ते आ गया और नेगेटिव चार्ज इहदे इनर सर्कल ते आ गया। सो यह प्लेट पूरी नेगेटिवली इनसाइड तो भरी हुई है। यह वा तुहाडी प्लेट नंबर 2 और दोने प्लेटां दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जिहड़ा वा वो सेम है, दैट इज ए। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नूं बनाउण दे लई दो जरूरी कंडीशंस की मन्नियां जांदियां ने, वो कंडीशंस मन्नियां जांदियां ने
प्लेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੋਂਗਰ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ 에ਅਰ ਹੈ। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो फिर एक बार दस देना, लेट वी हैव टू प्लेट्स, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 is positively charged and other plate is negatively charged, both have same area of cross section and the distance between the plates is small d, ठीक है। और the conditions for making the parallel plate capacitor, there will be the infinite length of the plates। अच्छा मैं इत्थे एक गल क्लियर करदा फिर तो। देखो बेटा इनफाइनाइट शब्द का मतलब इत्थे ऐ नहीं है कि बहुत इनफाइनाइट, मैं पहला भी दस चुकिया। इनफाइनाइट का मतलब होंदा इट इज अ रिलेटिव टर्म भी अगर मान लो इना इस डिस्टेंस दे विच कोई भी छोटा जिहा ऑब्जेक्ट रख दईए तो उस ऑब्जेक्ट वास्ते ए दोनों प्लेट्स दे एंड्स नू देखना पॉसिबल ना होए, ਜਾਂ हम कह लो कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨੋਟ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ ਬੇਟਾ। हाँ जी, तो फिर क्या होया कि दो प्लेट्स ने, एक तो पॉजिटिव चार्ज है एक तो नैगेटिव है, तो दोनों का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है दोनों च। तो की होएगा दोनों के ओपोजिट चार्ज होने करके इन्हां दे विच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाँ जी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक तो माइनस क्यू चार्ज है। तो आपां की पता करना, आपां पता करना कैपेसिटेंस। देखो जो मैं फॉर्मूला दसन लगा ए हर कैपेसिटर च ही लगना वा, ठीक है। सो सानू पता कि Q का दे बराबर है CV ते C का दे बराबर हो गया Q अपॉन V। इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों दे विचकार। सो यह आ गया तुहाडे को Q C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है। सो क्यों ना आपां पोटेंशियल डिफरेंस कढ लईए कैपेसिटेंस कढण वास्ते, ठीक कर सकते हैं। ते पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा वा वो तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड नाल जुड़िया होया, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो ही पोटेंशियल डिफरेंस कढ़िया जा सकता है ही ना एक रिलेशनशिप, नहीं ही तो याद करवा देना, ठीक है। अच्छा हुण जिद्दां सानू पता वा कि ए जिद्दां मतलब पहली प्लेट की गल कर लईए, ए पहली प्लेट दे उत्ते प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है ते ए की है एक प्लेन शीट है। तुहानू याद है मैं तुहानू इलैक्ट्रिक फील्ड कढना दस्सिया सी, गॉस लॉ दी एप्लीकेशन नंबर 3 सी शायद, हाँ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਗੌਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ फील्ड ड्यू टू फर्स्ट यानी कि प्लेट 1 की बताओ ओ सी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलिया है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की निकलिया पॉजिटिव चार्ज प्लेट दा E1 और एदी डायरेक्शन की होगी, एदी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उससे तरह ही अगर मैं गल करा ताडे को दूसरी प्लेट दी जो कि नेगेटिव प्लेट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट सेकंड ओदा इलेक्ट्रिक फील्ड की होएगा, ओदा इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा बेटा टुवर्ड्स दैट इज E2। ओदी वैल्यू भी सेम होएगी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच जेड़े दे अमाउंट ऑफ चार्जेस हैगे ने वो सेम ने, ठीक है। सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट करके टुवर्ड अवे, ते दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा वो नेगेटिव प्लेट करके है, ते नेगेटिव फील्ड दा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेगेटिव प्लेट दा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स होना, यानी कि E2 दी डायरेक्शन भी जेड़ी आ वो सेम ही आएगी, सेम आएगी ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गया
नेट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स, क्योंकि दो प्लेट्स ना तुहाडा कैपेसिटर बनया तो दोनों प्लेट्स का जिहड़ा नेट इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया तुहाडे कोल E1 प्लस E2। इट मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया तुहाडे कोल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट्स जो है उसकी वैल्यू है आ गई, यही आई है वैल्यू। ठीक है, हाँ जी। सो दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे किए E1 प्लस E2, दोनों का नेट इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है भी, ठीक है हाँ जी। ते हुण आपां की करांगे, हुण आपां इहदे तों पोटेंशियल डिफरेंस कढांगे। ठीक है, सिग्मा की है, सिग्मा की वैल्यू अगे भर सकते हैं, सानू पता ही है सिग्मा हुंदा सर्विस चार्ज डेंसिटी, जिहदा फार्मूला वा Q अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिथे जरूरत पैंदी आ उत्थे असीं इहनूं भर लैंदे आ। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गई, चल गया पता, नोट कर लो पॉज करके। डन, ठीक है। तुहानू पता एक रिलेशनशिप तुसीं पढ़िया ही, और रिलेशनशिप हैगा ही रिलेशनशिप बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वैल्यू ही हो शायद dV इज इक्वल टू EdR, आई ही dV इज इक्वल टू EdR, इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस है। इत्थे तुहाडे कोल dV दी बजाय हैगा डेल्टा V, असल च डिफरेंस हैगा ही तुहाडे कोल dV इज इक्वल टू माइनस EdR, पर अगर मैं इहदा मैग्नीट्यूड ही कढना तो मैग्नीट्यूड कढना मोड कढना तो फिर माइनस का तो सिंबल की कोई लोड़ नहीं है, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड और इत्थे dr की है, dr तुहाडा वही डिस्टेंस है जो नीचे दिता है, सेम दिशा च ही है, इस करके तुहाडे को आ गया EdR या ED समझ लो, यही आ गया dV की बजाय डेल्टा V। ठीक, सो डेल्टा V इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ते सिग्मा सिग्मा मैं तुहानू दस्सिया ही की हुंदा, सिग्मा हुंदा Q अपॉन A, सो डेल्टा V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। यह क्या आ गया, यह आ गया तुहाडे को पोटेंशियल डिफरेंस की जी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, मैं फिर रिपीट कर देना, ए रिलेशनशिप सी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिक फील्ड, जिहदे विच मैं तुहानू दस्सिया कि वैसे तो माइनस साइन हुंदा वा, पर क्योंकि आपां इहदा सिर्फ मैग्नीट्यूड कढना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही, ते आपां माइनस साइन नूं नेगलैक्ट कीता ते इत्थे मोड पा दिता। सो वैल्यू फिल कीतियां जो जो साडे कोल हैगियां, dV साडे कोल डेल्टा V है, E इलैक्ट्रिक फील्ड है, हुणे कढिया दोवां शीट्स का इकट्ठा और दोनों प्लेट्स का इकट्ठा, क्योंकि ये प्लेट्स ही ने शीट की तरह के इनफाइनाइट प्लेट्स ने, ते यह की है dr इन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है ओदी गल होंदी है, सो भर दिता। सो यह वैल्यू आ गई तुहाडे कोल डेल्टा V इज इक्वल टू Q, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू Q D A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हुण आपां की करना, हुण साडे कोल फार्मूला सिंपल कैपेसिटेंस का फार्मूला ही Q अपॉन डेल्टा V, सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनू करन दे लई नीचे डेल्टा V की वैल्यू जिहड़ी आ ओनू फिल कर दियो। सो जदों तुसीं इनू इत्थे फिल करोगे ते यह आ गया तुहाडे कोल Q D A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिहदे च की होएगा तुहाडा Q नाल Q कट हो जाएगा और यह ऊपर वैल्यू चल जाएगी, कैपेसिटेंस कादे बराबर आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यह वा तुहाडा रिलेशनशिप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दा।
ਇਹ ਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट A ਇਨਟੂ D। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਟ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ the two plates is very small as compared to area between the area of the plates। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Q/V ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ यानी कि एरिया ਤੇ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ energy stored in parallel plate capacitor। parallel plate capacitor ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, energy stored in parallel plate capacitor ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ये लो यार, फिर तो बना देना। हाँ जी, मैं काफ़ी बार अपने स्टूडेंट्स ने एक चीज़ दसी हुई है जी याद आए तुहानू ते मैं हमेशा कहा कि जदों भी तुसी किसी चीज़ की एनर्जी दा एक्सप्रैशन लिखन जानते हो तो एनर्जी वर्क डन दे इक्वलेंट है, यानी कि समझ लो कि वर्क डन करना। सो वर्क डन की करना इत्ते गल करते हैं। देखो मान लो साडे कोल एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दो प्लेट्स ना मिलके बनया ठीक है, प्लेट 1 है प्लेट 2 है। हुण गल आंदी है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का मतलब है कि जदों इनू चार्ज किया जाएगा ਤੇ उस वेले ਜਦੋਂ चार्ज कुछ नहीं खाली जीरो, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ चार्ज ही जीरो, Q ਦੀ वैल्यू जीरो, ਜਦੋਂ ਇਹ फुल हो गया लेट मान लो Q चार्ज तक ਅਸੀਂ फुल कर लिया, ਉਦੋਂ तक ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ स्टोर ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। मान लो इन्हू चार्ज मूव करवाया +1 कूलम
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ +1 ਕੂਲਮ यानी कि ਇੱਥੇ +1 ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, क्योंकि उधरों चार्ज 1 कूलम घटिया, इत्थे -1 आ गया। हुण की होया, थोड़ा होर चार्ज मूव करवाया, फिर चार्ज मूव करवाया, इत्थे तुहाडे को +2 चार्ज हो गया, इत्थे -2 हो गया। देखो जदों सब तो पहला चार्ज मूव करवाया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यह उस वेले न्यूट्रल है, दोनों प्लेट्स आराम नाल चार्ज एक जगह तो दूसरी जगह चल जाना। पर जदों दूसरे चार्ज नूं मूव करवाने की कोशिश करनी है तो यह ऑलरेडी नैगेटिव चार्ज हो गया होना -1, ਇਹਦੇ तो चार्ज लैके जाना तो दूसरे पासे जाना जिथे ऑलरेडी प्लस चार्ज हैगा, उत्थे जाके चार्ज नूं देना, तो उन्हें इस प्लेट ने रिपेल की प्रॉपर्टी करनी है और इस प्लेट ने उस चार्ज नूं अपने को जान नहीं देना तो अट्रैक्ट की प्रॉपर्टी करनी है। इट मीनस कि तुहाडा जिहड़ा चार्ज हैगा वो इस प्लेट तो दूसरी प्लेट तक खड़न वास्ते किसी प्रकार की एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पेगी, यानी कि आपां बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करांगे, सैल का इस्तेमाल करांगे ते फिर आपां इहनूं चार्ज करांगे। ते चार्जिंग करन दे दौरान एक प्लेट तो दूजी प्लेट तक चार्ज नूं खड़न दे लई कुछ वर्क डन करना पेगा, और उस वर्क डन करन दे नाल ही दोनों प्लेट दे विच किसी प्रकार की पोटेंशियल डिफरेंस का निर्माण होएगा। यही मेन लॉजिक है, यही मेन कॉन्सैप्ट है कि जदों असी एक प्लेट तो दूजी प्लेट के उत्ते चार्ज नूं बार बार लैके जावांगे ते लगातार यह वाली प्लेट जिथों चार्ज जाए करदा वा वो उस चार्ज नूं नहीं जान देगी, क्योंकि इत्थे चार्ज बिल्डअप हो जाना। पहला देखो -1 चार्ज है, इन्ने नूं जान लई थोड़ा जिहा जोर लगाना, पर जदों इतों -10 चार्ज होना तो इहदा जोर होर वध जाना। और दूसरे पासे दूसरी प्लेट के उत्ते जो पहले के उत्ते +1 चार्ज है तो इधरों एक चार्ज हो आएगा तो रिपल्शन तो देनी है ना इस प्लेट ने, है ना, रिपेल करेगा। तो जो ये +10 चार्ज हो गया होना तो रिपल्शन होर वध जानी है। ਇਹਦਾ मतलब है वा कि बैटरी की सॉरी सैल कैपेसिटर दी दोनों प्लेट्स दे विचकार चार्जिंग के दौरान जदों चार्ज एक जगह तो दूसरी जगह ते शिफ्ट होएगा तो साडे को वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यही तरीके नाल आपां दी कैपेसिटेंस सॉरी एनर्जी कढ़न जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया तक? लो जी आओ शुरू करते हैं। मान लो जदों आपां स्टार्टअप किया तो प्लेट्स दोने जड़े आ वो प्लेट जड़ियां दोने आ उन्हां दे उत्ते कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि क्यू की वैल्यू जड़ी आ वो 0 आ। ठीक है, मान लो कि किसी टाइम ते कोई भी विचला टाइम ते जो चार्जिंग होए करती है उस वेले ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस की है। मान लो उस वेले तक क्यू चार्ज ਜਿਹੜਾ ਵਾ स्मॉल क्यू चार्ज ਜਿਹੜਾ ट्रांसफर हो चुका कितना स्मॉल क्यू। सो पोटेंशियल कादे बराबर होएगी, सानू पता कि कैपेसिटेंस होंदी है क्यू बाय वी ते पोटेंशियल की होएगी, पोटेंशियल होएगी क्यू बाय सी। यही होएगी, यही होएगी ना, एट एनी टाइम डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। इतना चार्ज मान लो किसी टाइम पे भी हो सके। आपा की करना, आपा करना टोटल एनर्जी कढ़नी है, टोटल चार्ज जदों इन्हें कंप्यूट कर लिया, टोटल चार्ज जदों इन्हें चार्ज कर लिया, कैपेसिटर ने पूरा फुल बटा फुल अपने आप को चार्ज कर लिया। ठीक है, इन्हों आप कितों कटांगे, मैं तुहानू दस्सिया वर्क डन तो निकलना। सो पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन दे नाल एक फार्मूला सी, वो सी द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू let potential difference is equal to the small amount of external work done to move the charge dq. Let small amount of work done dw is done
टू मूव द चार्ज कितना dq dq चार्ज मूव करवाया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यही ਤੁਹਾਡੇ को पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया ਤੁਹਾਡੇ को डेल्टा v इनटू dq यही आया अगर मैं इत्थे डेल्टा v की वैल्यू भर देना तो ਤੁਹਾਡੇ को क्या आ गया यह आ गया ਤੁਹਾਡੇ को q बाय c इनटू dq इको टर्म में आ गई इको टर्म च आ गई है ना c की है c कांस्टेंट है ਤੁਹਾਡਾ सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज टू मूव द चार्ज जीरो टू कैपिटल क्यू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ 0 टू कैपिटल क्यू आ गया वो की होएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 टू कैपिटल क्यू ठीक है लोअर लिमिट की लगाती इतों तक समझ आ गया ऊपर कर दें ऊपर कर देना तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ dq ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ dq ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੋ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ dw ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ dw ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ v dq डेल्टा v की ही पोटेंशियल एट एनी टाइम व्हेन द चार्ज जस्ट q मूव ते पोटेंशियल एट एनी टाइम दी वैल्यू है सी एक वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਭਰੀ और दूसरी वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ਕੱਢਣਾ सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ਕੱਢਣਾ सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਜ 0 ਤੇ ਸੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ओ 0 टू कैपिटल क्यू और ताड़ी टर्म्स केड़ियां ने q बाय c इनटू dq हुण इहदे च तुहानू पता साडे कैपेसिटर दी जिहड़ी कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है और अगर वो कांस्टेंट है तो तुसीं की करोगे 1 बाय c कांस्टेंट बाहर कढ लोगे 0 टू q है ना q इंटू dq आ गई गल इंटीग्रेशन दी x की इंटीग्रेशन होंदी है x की पावर 2 बाय 2 अगर आपां x की इंटीग्रेशन करते हैं x dx दी ते दी इंटीग्रेशन है x की पावर 2 बाय 2 q दी कीती है ते आ गया तुहाडे कोल q दी पावर 2 बाय 2 ते लिमिट नू नाल लगा लेंगे फिर वो लिमिट पास करावांगे जो लिमिट पास कराई तो कैपिटल क्यू ये आ गया 1 बाय सी कैपिटल क्यू बाय 2 और जो -2 करना तो सेम ही वैल्यू आई नहीं है कर दियो एलो कर लो यार 0 स्क्वायर ए खत्म होनी नहीं है वैल्यू इन्हों लिखने की लोड़ ही नहीं है इस करके इस तरह लिखता सो यह तुहाडा जिहड़ा वर्क डन है कादे बराबर आ गया यह वर्क डन आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c सो ए अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पाया this work done is stored in the capacitor as its electrostatic potential energy so इस वर्क डन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇवेलेंट ਕਰਾਂਗੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ठीक है सो करदा मैं रब इत्थे कर देना ये इस जगह पे सो ए जेड़ा टोटल चार्ज एक जगह एक प्लेट तो दूजी जगह ते गया ते वो चार्ज जान दे उत्ते ओदे च जेड़ी वर्क डन कीता गया वो वर्क डन नु आपां एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दे तौर दे उत्ते मंनदे आ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दे तौर दे उत्ते आपां इहनू मंनदे आ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्केयर अपॉन 2C। पर इस दे दो फार्मूले ने, एक नहीं है दो है। किस तरह दो ने, तुहानू पता Q इज इक्वल टू CV के बराबर भी है। अगर मान लो मैं चाहना कि Q वाली टर्म मैनू नहीं चाहिए, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ CV ही शो करना, Q टर्म नहीं चाहिए, तो फिर मैं इत्थे भर दांगा Q इज इक्वल टू CV, तो तुहाडे कोल टर्म आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी CV स्केयर अपॉन 2C। ऐ कटिया गया, आ गया हाफ CV स्केयर। एक फार्मूला ए आया, पहला ए आया सी, दूसरा नंबर ए आया। और अगर मान लो मैं चाहना कि C वाली टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Q ते V होए, तो फिर मैं इनू इस तरह भी भर सकना U Q स्केयर 2। हुण तुहानू पता C का बराबर है, C है तुहाडे कोल Q अपॉन V दे, ठीक है। C का बराबर है Q अपॉन V दे। हुण Q ना Q कटता ते तुहाडे कोल की आ गया, आ गया तुहाडे कोल हाफ QV। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ तीसरी टर्म आ गई। सो पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮਸ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्लेट तो दूसरी प्लेट तक जा रहा, टोटल वर्क डन कढ़ना ही जिहदे विच टोटल चार्ज 0 तो लैके Q तक जाके पूरी दी पूरी जिहड़ा कैपेसिटर है इहनूं चार्ज किया गया। जिन्हों करने वास्ते मैं तुहानूं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यूज किया ही, जिहदे विच मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यूज की कीता कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्योंकि आप सब तो पहला स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्क डन कढ़िया ही, जिहदे विच स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq नूं मूव करवाया ते dw वर्क डन कढ़िया ही। इस करके आप इनू यूज करके फिर उहदे ते टोटल इंटीग्रेशन करके ते इंटीग्रेशन टर्म दे नाल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दा एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिया। सो ऐसी साडे कोल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाल जुड़े हुए दो टॉपिक। होप सो तुहानूं यह चीज़ समझ आ गई होए। जो भी करवाया गया इनू तुसी प्रॉपरली नोट डाउन कर लियो, ये नोट्स नाल दिते जाणगे, जदों न्यूमेरिकल करवाए जाणगे ते इन्हां एक्सप्रैशन दा तुहानूं आना बहुत जरूरी है। समझ आ गई जी? बहुत वधिया जे समझ आ गई है, ते जे नहीं आई तो फिर इनू रिवर्स करके लाओ, समझ जरूर आएगी। मैं रिपीट कर दियां, मेरा तुहानूं ठेठ पंजाबी दे विच पढ़ाउण दा इक्को ही कारण है कि तुसी ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ।